دیکھیے عربی میں ایک لفظ سے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں. جیسے یہ لفظ ہے ضربن، اس سے ایک لفظ بنا ضاربن، ایک بنا مضروبن، اور ایک بنا مضربن، اور ایک بنا مضرابن، اور ایک بنا اضرب. اتنے سارے بنے، اور بھی بنے. ہم لوگوں نے جو پڑھے ہیں وہ یہ 5 پڑھے ہیں. یہ سب ضربن سے بنے ہیں، ضربن لفظ سے. ضربن لفظ کا معنی آتا ہے مارنا. ضربن کا معنی آتا ہے مارنا. اس سے بنا ضاربن. ضاربن کے معنی ہے مارنے والا. اس کو بولتے ہیں اسم فاعل گرامر میں. مارنے والا جو معنی آتا ہے کرنے والا، اسم فاعل. مضروبن بنا. مضروبن کا معنی مار کھایا ہوا، جس کو مارا گیا. اس کو کہتے ہیں اسم مفعول. مضربن اس کے معنی ہے مارنے کی جگہ یا مارنے کا وقت. اس کو کہتے ہیں اسم ظرف. مضرابن مارنے کا آلہ، اس کو کہتے ہیں اسم آلہ. اضربو مانے زیادہ مارنے والا، اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل. یہ جو ضربن ہے جس سے یہ سارے الفاظ نکل رہے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس کو کہتے ہیں مصدر. اس کو کہتے ہیں مصدر. تو مصدر وہ لفظ جس سے دوسرے الفاظ بنائے جاتے ہیں. مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے الفاظ بنائے جاتے ہیں. جیسے ضربن یہ لفظ ہے، اس سے اتنے سارے الفاظ بنے. یہاں پر 5 لکھے ہوئے ہیں، اور بھی الفاظ بنتے ہیں جو ہم لوگ آگے پڑھیں گے. تو مصدر سمجھ گئے؟ مصدر وہ لفظ ہے جس سے دوسرے الفاظ بنائے جاتے ہیں. ایک مثال اور لے لیتے ہیں. فتحن. فتحن سے بنا فاتحن، مفتوحن، مفتاحن، مفتاحن، افتح. فتحن سے بنا. فتحن روٹ ورڈ ہے. فتحن کے معنی کیا ہے؟ کھولنا. کھولنا یہ جو معنی ہے یہ فتحن کا ہے اصل میں. فتحن کے معنی کھولنا. فاتحن کے معنی ہے کھولنے والا. اس پیٹرن کو عربی گرامر میں اسم فاعل کہتے ہیں، جس میں کرنے والا کے معنی رہتے ہیں. مفتوحن کے معنی ہے کھولا ہوا. اس پیٹرن کو عربی میں اسم مفعول کہتے ہیں، جس پر کام ہوتا ہے. کھولنے کا کام جس پر ہوگا وہ مفتوحن رہے گا. مفتحن معنی کھولنے کی جگہ، کھولنے کا وقت. اس پیٹرن کو عربی میں اسم ظرف کہتے ہیں. مفعول مفعول 2 پیٹرن آتا ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے. مفتاحن کے معنی ہے کھولنے کا آلہ، اسی کو چابی کہتے ہیں. گرامر میں اس کو اسم آلہ کہتے ہیں. اس پیٹرن کو، اس کے 3 پیٹرن پڑھے: مفتاحن، مفعال، مفعالتن، مفعالن. 3 پیٹرن پڑھے ہم لوگ. افتح زیادہ کھولنے والا، کسی سے زیادہ یا سب سے زیادہ کھولنے والا. اس کو عربی گرامر میں اسم تفضیل کہتے ہیں. اسم تفضیل کسی سے زیادہ یا سب سے زیادہ کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. اب یہ جس لفظ سے یہ سارے الفاظ نکلے ہیں وہ فتحن ہے. اس کو عربی میں کہیں گے مصدر. تو فاتحن کا مصدر کیا ہے؟ فاتحن کا مصدر فتحن ہے. فتحن سے فاتحن نکلا ہے. مفتاحن کا مصدر کیا ہے؟ مفتاحن کا مصدر فتحن ہے. فتحن سے مفتاحن کا لفظ نکلا ہے. مفتوحن کا مصدر فتحن ہے. فتحن سے مفتوحن کا لفظ نکلا ہے. مفتحن کا مصدر فتحن ہے. فتحن سے مفتحن کا لفظ نکلا ہے. افتحو کا مصدر فتحن ہے. فتحن سے افتحو کا لفظ نکلا ہے. یہ سارے الفاظ فتحن سے نکلے ہیں. فتحن مصدر ہو گیا. مصدر سمجھ گئے آپ لوگ؟ وہ لفظ جس سے دوسرے الفاظ نکلے وہ مصدر ہوتا ہے. اب یہاں مصدر سے ہم نے کیا کیا نکالا ہے؟ اسم فاعل نکالا ہے، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل. یہاں تک ہم لوگوں کا پڑھا ہوا ہے. اور بھی کچھ نکلتے ہیں. مبالغہ، صفت مشبہ،
ये अभी नया है आप लोगों के लिए, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। तो मस्दर से ये सारे अल्फाज निकलते हैं, इसमें फाइल का लफ्ज, इसमें मफऊल का, इसमें ज़र्फ का, इसमें आला का, इसमें तफजील का, मुबालगा का, सिफत मुशब्बह का, ये सारे अल्फाज मस्दर से निकले हैं। मस्दर से जो लफ्ज निकलता है उसको मुश्तक कहते हैं, मुश्तक। तो इसमें फाइल मुश्तक हो गया, इसमें मफऊल मुश्तक हो गया, इसमें ज़र्फ मुश्तक हो गया, इसमें आला मुश्तक हो गया, इसमें तब्जील मुश्तक हो गया, मुबालगा मुश्तक हो गया, सिफत मुशब्बहा मुश्तक हो गया, ये सारे मुश्तक हैं। मुश्तक की जमा मुश्तक्कात है। मुश्तक्कात क्या क्या हैं? अगर पूछा जाए मुश्तक्कात क्या क्या हैं, तो ये बताएंगे कि इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, मुबालगा, सिफ़त मुशब्बहा, ये सब मुश्तक्कात हैं। ये किससे मुश्तक होते हैं? मस्दर से मुश्तक होते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? मस्दर जैसे ज़रबुन मारना, जुल्मुन जुल्म करना, हमदुन तारीफ करना। मस्दर वो लफ्ज जिससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। अरबी में जो मस्दर रहता है, उर्दू में जब उसका तर्जमा करते हैं तो उसमें ना लगाते हैं, ना। उर्दू में मस्दर के तर्जमे में ना आता है, ना। मारना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब क्या है? मस्दर है। उर्दू में ना आ जाए तो समझ जाना मस्दर है। उर्दू में बहुत आसान है मस्दर को पहचानना, ना आ जाए तो मस्दर है। अरबी में मुश्किल होता है, उसको थोड़ा समझना पड़ता है, वक्त लगता है, लेकिन उर्दू में तो बहुत आसान है। जहां ना आ जाए वो मस्दर है। पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, भगाना, समझाना, समझना, ये सब मस्दर है। तो मस्दर वो लफ्ज है जिससे दूसरे अल्फाज बनते हैं, ठीक है। इसम की दूसरी किस्म हो जाती है मुश्तक की। मुश्तक क्या है? जो मस्दर से बनता है। जैसे इसमें फाइल, ये मुश्तक है। जैसे आबिदुन, इबादत करने वाला, ये इसमें फाइल है, ये मुश्तक है। इसमें मफरूल, माबूदुन, जिसकी इबादत की जाए, ये भी मुश्तक है। इसमें ज़र्फ, माबदुन, जिस जगह इबादत की जाए, ये भी मुश्तक है। इसमें तब्जील, आबदु, आबदु अफ़आलु के वज़न पर, ज्यादा इबादत करने वाला, किसी से ज्यादा या सबसे ज्यादा इबादत करने वाला, ये भी मुश्तक है। और भी हैं जो यहाँ हम नहीं लिखे, और भी मुश्तक्कात हैं, 4 हमने यहाँ पर बतौर मिसाल के लिखे। तो इसमें की ये 2 किस्में तो हम लोग पढ़ लिए और समझ गए। मुश्तक पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, उसका नाम नहीं पता था, आज हम लोगों ने उसका नाम भी मालूम कर लिया, और मस्दर का आज पढ़ लिया है। तो मस्दर वो लफ्ज है जिससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। मुश्तक वो है जो मस्दर से बनता है। तो बहुत आसान है, देखिए दोनों का रिश्ता क्या है। मस्दर से मुश्तक बनता है, मस्दर से मुश्तक होता है। मस्दर से दूसरे अल्फाज बनते हैं, तो दूसरा लफ्ज जब मस्दर से बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मुश्तक। मस्दर से क्या बनता है? मुश्तक बनता है। मुश्तक आता कहाँ से है? मस्दर से आता है। बहुत इतनी सी कहानी है पूरी। मस्दर वो लफ्ज है जिससे दूसरे अल्फाज निकले, दूसरा लफ्ज निकलेगा तो उसको मुश्तक कहेंगे। मुश्तक वो है जो मस्दर से आए। मस्दर से जो आए वो मुश्तक है, मस्दर से जो बने वो मुश्तक है। 2 हो गए। अब एक और बच रहा है, वो क्या है? तो वो है जामिद। जामिद किसे कहते हैं? जामिद न किसी से बना हो, न उससे कोई दूसरा लफ्ज बने, ठीक है। मस्दर में क्या होता है? इससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। मुश्तक में क्या होता है? ये किसी लफ्ज से निकलता है, मस्दर से निकलता है। जामिद में ऐसा कुछ नहीं रहता है, न ये किसी से बनता है न इससे कोई लफ्ज बनता है, जामिद जमा हुआ। जैसे रजुलुन, आदमी, तो रजुलुन न मस्दर है न मुश्तक है,
रजुलन ऐसा लफ्ज नहीं है कि उससे दूसरे अल्फाज निकलें, हाँ? और रजुलन ऐसा लफ्ज भी नहीं है जो दूसरे लफ्ज से निकला हो, हाँ? रजुलन ऐसा लफ्ज नहीं है कि उससे दूसरे अल्फाज निकले, लिहाजा वो मस्दर नहीं है। और रजुलन ऐसा लफ्ज नहीं है कि वो दूसरे लफ्ज से निकला हो, लिहाजा वो मुश्तक भी नहीं है। इसी तरह फरसुन घोड़ा, फरसुन ऐसा लफ्ज नहीं है कि उससे दूसरे अल्फाज निकलें, इसलिए ये मस्दर नहीं है। और फरसुन ऐसा लफ्ज नहीं है कि ये किसी लफ्ज से निकला हो, इसलिए मुश्तक नहीं है। तो मस्दर नहीं है, मुश्तक नहीं है, क्या है? जामिद है। अर्जुन जमीन, ये ऐसा लफ्ज नहीं है कि इससे दूसरे अल्फाज बने, लिहाजा ये मस्दर नहीं है। इसी तरह ये ऐसा लफ्ज नहीं है कि ये दूसरे लफ्ज से निकला हो, इसलिए ये मुश्तक भी नहीं है। तो मस्दर भी नहीं है, मुश्तक भी नहीं है, क्या है? जामिद है, हाँ? तो जो न मस्दर हो न मुश्तक हो उसको जामिद कहते हैं, हाँ? तो देखिए बहुत आसान है, जिससे दूसरे अल्फाज निकले वो मस्दर है, जो दूसरे लफ्ज से निकले वो मुश्तक है, जो न दूसरे से निकले न उससे कोई निकले वो जामिद है। इतनी सी बात है मुख्तसर में। तो इसमें की ये तीन किस्में हो गई, मस्दर, मुश्तक, जामिद। इसको याद कर लीजिए।